बट यू नेवर थिंक दैट दिस शिट इज़ गोइंग टू हैपन टू यू. यू नेवर थिंक कि तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है. बट वेंट थ्रू पीक ट्रामा इन दोज फ्यू आवर्स दैट आई हैड टू स्टे एट द एयरपोर्ट. भाई मैं दिल्ली के एयरपोर्ट में दिल्ली के लोगों के सामने और एयर इंडिया वालों के स्टाफ के सामने तो मैं नहीं रोने वाली हूँ. टुडे इज़ 23rd February एंड आई एम बोर्डिंग अ फ्लाइट टू हांगकॉन्ग. बट ओरिजिनली मुझे कल जाना था 22nd February. आई हैव बिन एट दिस एयरपोर्ट 5 times in the last 24 hours because I couldn't get on my Hong Kong flight. Basically, there is something called pre-arrival registration if you want to go to Hong Kong, and my entire family had a single field wrong. It was a very tiny mistake, but we had to do it all over again. And my entire family was able to do it except me. मेरा unsuccessful हो रहा था, बार बार मेरा unsuccessful हो रहा था. 2 घंटा 2.5 hours तक हमने ट्राई किया to get my pre-arrival registration. My entire family got one, but I was not able to get it. सिर्फ मेरा ही नहीं हो पा रहा था. And then we had to make a tough decision, bro. मेरे parents की anniversary trip थी. I told them, you guys are all going. It's okay. I will fly out to Bangalore. And I was too numb to feel anything, bro. I love travel. I want to be traveling all the fucking time. So it was like कि भाई मैं ट्रिप मिस कर रही हूँ. मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे. And for me the biggest thing was कि मैं डिज्नीलैंड नहीं जाने वाली, guys. I'm gonna miss Hong Kong Disneyland. I couldn't stop thinking about it. I couldn't stop thinking about anything else. But in that moment, the flight was about to leave. I was so numb, and the only option was to let my parents go. My parents and my sister, all of them left. Obviously, मेरी मम्मी बहुत रोई. मैं मम्मी को देख के मैं रोने लगी. मैंने कहा रोने की बात ही नहीं है. कोई बात नहीं. We'll figure some shit out. But right now, I cannot sit on this flight. Rest of my family, they caught the flight and they went. Now, what the fuck am I supposed to do? मैं just अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं नहीं जा रही हूँ हांगकॉन्ग. I'm not able to process it, and I'm sitting at the airport, and I don't know what to do, and nobody is helping me. Next thing that I need to do was figure out which other flight am I going to take. Am I going to go to Bangalore? Am I going to go to Hong Kong? I looked at all the flights. I saw there were Bangalore flights and Hong Kong flights, and I decided the best flight to get on Hong Kong is the same flight for the next day. Again, an Air India flight, same time the next day. Basically, I had to get an approved PR in the next 24 hours, and then I could go to Hong Kong. And you will not believe, भाई मेरे से जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें गई हैं ना, मेरे को इतनी तेज़. आई एम समबडी हु क्राइज वेरी इजीली. मुझे इतनी तेज़ रोना आ रहा था, बट फिर भी आई जस्ट कंट्रोल्ड इट. आई वाज लाइक भाई मैं दिल्ली के एयरपोर्ट में दिल्ली के लोगों के सामने और एयर इंडिया वालों के स्टाफ के सामने तो मैं नहीं रोने वाली हूँ. सो नाउ माई पेरेंट्स आर गॉन. I have to figure my shit out. I'm looking at all flights and I've decided, listen, I'm going to try for the Hong Kong flight tomorrow. I have gone to the Air India counter and the entire staff has changed. So now there is nobody there who has any clue about मेरे life में क्या हो रहा था. Nobody there now knows anything about what happened to me. The only one who couldn't get an approved pre-arrival registration into Hong Kong kept saying it's unsuccessful and invalid. Okay, and there's a lot of issues that were going on. I need to get the hell out of this airport because the only flight that I can take is tomorrow. मैं एक होटल को फ़ोन करके पूछ रही हूँ, भाई आपके पास रूम है, सब मना कर रहे हैं. सॉरी मैम, वी आर फुल. सॉरी मैम. भाई आई एम सो वल्नरेबल एंड ओवरवेल्म्ड राइट नाउ. आई कैन नॉट हैंडल एनीथिंग. मेरे को सोने के लिए बेड, कमरा कुछ तो चाहिए, और मैं फालतू जगह पे तो नहीं सोने वाली हूँ. मुझे एयरपोर्ट के पास भी रहना था बिकॉज दूर रह के कोई फ़ायदा नहीं है. एंड ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू, दिस वॉज 1 AM in Delhi. At 1 AM in Delhi, I was about to travel alone and I did not want to go far away because let's face it, Delhi is unsafe as shit. Finally, एक हयात के होटल में रूम था. मैंने बोला भाई मैं भाग रही हूँ यहाँ से, समझ में आ गया, मैंने बुक कर दिया. I figured shit out. I also bought food at the airport, third wave से. I'm on my way and I'm thinking ठीक है, at least I'm going to the hotel and then I'm gonna cry. It's important to note that I am not crying till now because I'm scheduling my crying from when I'm in the room. समझ रहे हो? आई अंडरस्टैंड दिस इज अ नॉर्मल इशू दैट हैपेंस टू पीपल, बट इट वाज जस्ट लाइक मेरी पूरी फैमिली चली गई हांगकॉन्ग. आई वाज अपसेट एंड आई वाज लाइक भाई मेरे को भी जाना तो था ही. मैंने छुट्टी ले रखी है, मेरे को बैंगलोर नहीं जाना वापस. भाई अब मेरे को ट्रिप पे जाना है. लोगों की नज़र की वजह से तुम में से किसी ने तो मेरे पे बहुत गंदी नज़र लगाई. भाई छोड़ दो मुझे, भाई प्लीज़ छोड़ दो मुझे. उसके बाद आई हैड टू एग्जिट द एयरपोर्ट. मैंने पहले कभी भी डिपार्चर से एग्जिट नहीं किया है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू बी एग्जिटिंग इन एयरपोर्ट फ्रॉम द डिपार्चर गेट. मेरे को नहीं पता था कैसे करना है ये. मैं जाके एक गार्ड से पूछ रही हूँ. सब कोई भी हेल्पफुल नहीं है. सब इरिटेट कर रहे हैं, सब फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं. नोबडी इज हेल्पफुल. फाइनली 1 person टेल्स मी यू हैव टू गो एंड आस्क एयर इंडिया पीपल टू लेट यू आउट. ओके, आई हैव अ रूम. आई नो दैट आई हैव टू टेक द नेक्स्ट हांगकॉन्ग फ्लाइट एंड समहाउ गेट अ वेरीफाइड एंड अप्रूव PAR, बट आई स्टिल नीड टू एग्जिट द एयरपोर्ट. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू द एयर इंडिया काउंटर. मैं वहाँ पे 15 मिनट खड़ी रही. 15 मिनट मैं लोगों से भीख मांगती रही कि सर मैम मुझे एग्जिट करा दो. वो लोग एक दूसरे को काम दे रहे हैं, आप करा दीजिए, वो करा देंगे, मैं नहीं करा सकता मैम, मैं क्या कर सकता हूँ मैम. मैं वहाँ खड़ी थी एटलीस्ट 15 minutes, maybe it was 20, trying to control my tears. I didn't have the brain wavelength to literally understand what is happening. I did not have the cells to process कि मेरे साथ actually हो क्या रहा है भाई. In the last 24 hours, the shit that I have gone through, not easy. Let me tell you, not easy. मैं बाल सेट करा के, दिल्ली में बाल सेट करा के, जो भाई मेरे बालों का हाल हो गया देख लो ज़रा एक बार.
गिव अप ही कर दिया मेरे बालों ने भी और मेरे स्किन में भी. Once I've taken all the luggage, all I had was another set of clothes, no makeup. नो मेकअप, नो क्रीम, नथिंग. आई जस्ट हैड अनदर सेट ऑफ क्लोथ्स. मैं एक छोटा सा बैग लेकर आई थी. आई हैड दिस डेली ऑब्जेक्ट्स बैग विथ मी. इट ओनली हैज़ चार्जर्स. सबके चार्जर मेरे बैग में थे, सबके चार्जर, एक सेट ऑफ क्लोथ्स. दैट इज़ ऑल दैट आई हैड. एंड माइंड यू, टिकट के पैसे भी देने हैं. क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, क्यों होता है? एयर इंडिया वाले अपना टाइम ले रहे थे मुझे एग्जिट कराने में. करा रहे हैं मैम, रुक जाइए, ठीक है. इग्नोर कर रहे थे मेरे को. फाइनली मैं पीछे पड़े पड़े के जब ऑलमोस्ट रोई एक बंदे के सामने, फिर उसने मेरे पे दया करके किसी को बोला मुझे एग्जिट कराने के लिए, और एक बंदी मेरे को फिर वहाँ से एग्जिट कराई. और मैं एग्जिट करके नीचे गई, ऊबर वाले उस पर गई, अराइवल पर जाके मैंने ऊबर ली. ऊबर की लाइन में 30-35 लोग खड़े हैं. कितना लेट हो सकता है? रात के 1 बजे के बाद हो गया है एंड आई एम स्टैंडिंग इन द लाइन ऑफ ऊबर अलोन. आंखें मेरी जो है एकदम लाल हो चुकी हैं. आई हैव फूड इन माई हैंड. फिर भी मैंने बहुत वेट किया. फाइनली मुझे कोई ऊबर मिली. होटल पहुंची तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा भाई कि थैंक गॉड दैट एटलीस्ट आई वाज लिविंग इन अ गुड होटल. तो मेरी कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स भाई मुझे तभी थोड़ा अच्छा लगा. मैंने होटल का बहुत फ़ायदा उठाया, मैंने बहुत आराम किया और मैं काफ़ी अच्छे से रोई. टर्न्स आउट मेरे पास हमेशा से एक अप्रूव पीआर था. आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू फाइंड इट एंड द एयर इंडिया स्टाफ डेफिनेटली डिडंट नो व्हाट टू डू. हुआ कहता कि मैंने एक बार एक फॉर्म भरा था. टर्न्स आउट कि जो मैंने एक बार फॉर्म भरा था दैट वाज एक्चुअली वर्किंग एंड उसके बाद आई केप्ट ट्राइंग अगैन एंड अगैन. And obviously, I am no master of Hong Kong immigration, so I have no clue. But you would think the Air India supervisor would know this. उनको भी नहीं पता, वो मुझे पूरी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. पहले मुझे कह रहे हैं कि iOS से तो आप कर ही नहीं सकती, आपको एंड्रॉयड से करना पड़ेगा. और मैं एंड्रॉयड भाई मेरी फैमिली में किसी के पास नहीं है, कल मेरे पापा का एक फ़ोन है. मैं वहाँ पे रास्ते पे लोगों से फ़ोन मांग रही हूँ. मैं एयर इंडिया के स्टाफ से भीख मांग रही हूँ कि मुझे फ़ोन दे दो. एक भली औरत ने मुझे फ़ोन दिया, भगवान उसका बहुत भला करे. देयर वाज दिस वन गर्ल इन एयर इंडिया हु गेव मी हर फ़ोन. इट डिड नॉट हेल्प मी, क्लियरली इट डिड नॉट हेल्प मी, बट एटलीस्ट शी गेव मी हर फ़ोन टू डू दिस. सब गलत इन्फॉर्मेशन थी. मैंने आईफोन से ही किया, सब चल गया भाई. कैन नॉट रिलाई ऑन एनी एयरलाइन सपोर्ट स्टाफ. खाली मैंने जेमिनाई का इस्तेमाल किया है. मैं और मेरे दोस्त बैठ के हमने जेमिनाई का इस्तेमाल किया रात के 3 बजे और मुझे मिल गया मेरा अप्रूव्ड पीआर. Because I already had an existing PAR that was working and that was the reason why I was not able to get a new one. AI ने मेरे को भाई AI जिंदाबाद. AI जिंदाबाद एज एन इंजीनियर आई एम सेइंग AI जिंदाबाद बिकॉज AI ने पकड़ ली मेरी गलती. प्लीज़ AI से पूछ लेना एक बार किसी ट्रिप पे आने के पहले कि क्या गड़बड़ हो चुका है आपके साथ. AI ने पकड़ ली बट एयर इंडिया वाले भैया नहीं पकड़ पाए कि प्रॉब्लम क्या है. एयर इंडिया वालों से नहीं हो पाया. उनकी वजह से मैं फ्लाइट पे नहीं चढ़ पाई जबकि मैं चढ़ सकती थी. आई कुड हैव जस्ट सैट ऑन द फ्लाइट समहाउ थ्रू जेमिनाई एंड द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स. आई हैव फाउंड इट. नेक्स्ट डे केम टू द एयरपोर्ट एंड मैंने एयर इंडिया वालों को धमकी दी कि सुनो, मैं टिकट तभी खरीदूंगी जब तुम मुझे बताओगे कि ये पक्का तुम मुझे अलाउ करने वाले हो एंड दिस टाइम there's not going to be any shit happening. I told them to call the supervisor, get it approved. I don't know whatever the hell you need to do. I am not moving from here till my PAR according to you is approved. You will make sure that I get onto that flight and you will give me a ticket for that flight. I waited there for an hour or so एंड भगवान की दया से सब हो गया. मेरी मम्मी की प्रेयर काम आई. तुम लोगों की दुआएं बिल्कुल काम नहीं आई हैं बिकॉज तुम लोग कुछ दुआएं मुझे लगाते ही नहीं हो. पक्का ना, प्रॉब्लम नहीं है. कितने बजे आ जाएगी? नाम बोल दो कि टिकट करा ली मैंने, जा रही हूँ फिर. बाद में नया जो घर है वो पूरा हो गया. बोर्डिंग पास. थैंक यू. एंड दिस वॉज माई एयरपोर्ट फिट. भाई मैंने सुबह पैसा खर्च किया है. मैं सोई नहीं हूँ कल से ढंग से. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है. बट फाइनली एटलीस्ट आई एम गोइंग टू बी एबल टू सिट ऑन दैट हांगकॉन्ग फ्लाइट. दिस अ लॉट ऑफ शिट दैट हैपेंड. यहाँ पे आके जो मैं पूरा दिन एयरपोर्ट पे बैठी हूँ भाई. मेरी 11 बजे की फ़्लाइट है. मैं पूरा दिन एयरपोर्ट पे बैठी थी. पूरा दिन. वो भी सोचो दिल्ली में. आई एम सॉरी बट आई डो नॉट लाइक दिल्ली. चेक इन की लाइन में लगी. चेक इन वाले काउंटर पे आस-पास में मैं इतनी फेमस थी. सब मुझे कह रहे थे मैम आप ही है ना जिनका कल नहीं होता है. मैम आप शुभांगी है ना, आपको कल नहीं होता. मुझे लगा भाई मुझे इस तरीके से फेमस नहीं होना था. कोई मेरे को पहचाने तो मेरे इंस्टाग्राम के लिए पहचाने. भाई मुझे लोग इसलिए पहचान रहे हैं बिकॉज सबको पता है कि कल ये हांगकॉन्ग नहीं जा पाई थी. कल इनकी मम्मी रोना कर रही थी और ये धोना कर रही थी. सब मेरे को उसी से पहचानते हैं. और कपड़े भी मैंने सेम ही पहने हुए हैं. तो मुझे लगा भाई हाँ मैं ही थी. आज मेरा करवा दो प्लीज़. ओके सो आई गॉट माई बोर्डिंग पास. सो आई माइट एक्चुअली बी गोइंग टू हांगकॉन्ग. बस जल्दी से इमिग्रेशन सिक्योरिटी पास हो जाए. माय गॉड माई हार्ट बीट इज़ सो फास्ट. I just want to get inside. Okay, thank God मेरा हो गया. फिर मैं इमिग्रेशन में गई तो मुझे इमिग्रेशन में भी दिल इतना धक कर रहा था ना. पूरा टाइम मैं भगवान का नाम ले रही थी कि भाई प्लीज़ हो जाए. जैसे ही मैं गई सारे इमिग्रेशन के काउंटर क्लोज हो गए. मैंने कहा यार ये क्या पनौती लगा रखी है मेरे पीछे. सारे इमिग्रेशन के काउंटर बंद क्यों हो गए. उसके बाद थोड़ी देर बाद ऑफिसर सर आए. उन्होंने मुझसे काफ़ी सवाल जवाब किए. कोई ये क्वेश्चन ज़रूर था कि इतनी सुंदर लड़की बिना किसी लगेज के कैसे ट्रिप पे जा रही है. आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड. इतनी फैशनेबल लड़की और कोई लगेज नहीं. इट्स वेरी वियर्ड. इट इज़ डिफरेंट. आई अंडरस्टैंड माई पीपल वुड आस्क मी दैट. वैसे सबको समझा रही हूँ मैं कि भाई ये हो गया. फाइनली आई गॉट इन. टर्न्स आउट माई गेट वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस फकिंग एयरपोर्ट एंड नाउ आई एम हियर. I have not eaten since breakfast.
I need to get some food in me, but I needed to vent this out. I needed to tell you guys the shit that I have gone through in the last 24 hours. I passed it. I passed immigration and security. I genuinely, I feel like I'm in a state where I cannot believe that this happened. I'm in duty free. I am going to go to my gate and hopefully I will enter Hong Kong also now. God, thank you so much. 22 फरवरी के 7 बजे से लेकर अभी तक जो भी मैंने सहा है, बाप रे बाप भाई, बस भगवान मुझे हांगकांग के एयरपोर्ट से सही सलामत बाहर निकाल दें। खड़ी हूँ एयरपोर्ट पे, एक दिन का डिले हुआ ना भाई, देख लेंगे भाई, सब मैनेज कर लेंगे। जिनका दिल सही होता है ना उनसे कभी कुछ गलत होता नहीं है। मैंने सिर्फ सुना था कि ये सब चीज़ें होती हैं एयरपोर्ट पे, मैंने सिर्फ आई जस्ट हर्ड कि होती हैं। लोग ही तुम स्टोरी देखते हो कि अच्छा लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, बट यू नेवर थिंक दैट दिस शिट इज़ गोइंग टू हैपन टू यू। यू नेवर थिंक कि तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है, बट इट डिड हैपन टू मी। बहुत देर तक हम लोग वेट करते रहे कि शायद मेरा PAR हो जाएगा, शायद मेरा अप्रूवल हो जाएगा, शायद मेरा अप्रूवल हो जाएगा। एंड आई अग्री कि इट वॉज आर मिस्टेक, दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद आर अप्रूवल एंड दैट वाज आर मिस्टेक। वी वर प्रीटी इनसेंसिटिव टू व्हाट हैपेंड टू मी एंड आई अंडरस्टैंड दैट दिस हैपेंस टू अ लॉट of people every day, so they don't have to be sensitive, but I still felt like they could have been nicer. But Air India, you really did not help me out. तुम लोगों ने कोई help नहीं करी है. You guys were not even having the right information and you guys were extremely mean. So I just want to say that the entire staff of Air India Delhi, except that one girl who helped me, be nicer and be sweeter and be better in your lives. Moral of the story is कि भाई मेरे साथ भी आज एयरपोर्ट पे कांड हो चुका है, तो मैंने भी लाइफ में एक बहुत ही धांसू एयरपोर्ट स्टोरी पाली है। लाइफ में कुछ भी सर्कमस्टांस आए तो उसको बिना रोए संभालना, रूम में जाके रोना, बाद में रोना, बट तब नहीं रोना भाई, लोगों के सामने नहीं रोना। मैं रूम में जाके बहुत रोई, फिर मैंने फिगर आउट किया, बट सबके सामने नहीं, सबके सामने नहीं रोना। बी अ बैडी इन फ्रंट ऑफ एवरी सिंगल पर्सन इन योर लाइफ एंड गेट थ्रू शिट। जो लोग सही होते हैं ना उनके साथ सही होता ही है, और देखो मैं जा रही हूँ। सो बिलीव इन योर सेल्फ, believe in your life, manifest every single thing that you want, and you can even get through shit like this. भले ही मेरे थोड़े पैसे खर्ची हो गए, but at least I stayed in a 5-star hotel and now I am going to Hong Kong, so shit was sorted thanks to me. It was kind of main character भाई, मतलब जो भी हुआ main character story तो थी है। And also flying solo internationally this year was not on my bingo card. I did not think that I would take an international flight solo, but God had other plans. This is literally the first time I'm going to be flying internationally alone, and maybe God wanted me to have that experience so that I have practice, because this year is gonna be banger. Relief that I felt by, I have not had a better feeling than what I felt when I passed immigration and security, and I was like, is this real? Did I get in? Am I really gonna get on my plane? Now I cannot wait to get out of the Hong Kong airport. Thank you so much for listening to my story. Follow me if you want to know कि और मेरी लाइफ में क्या नौटंकी होती रहती है. I am honestly so proud of myself, and I think I handled the situation beautifully and I did really great and I was really strong and I did not crumble. Hong Kong की अच्छी स्टोरी और पोस्ट देखना. Thank you so much भगवान. Thank you so much गणपति बप्पा. Remember this trip for the rest of my life. I will never forget. I will never take for granted any international travel ever. This was the most intense thing. This was so intense and I really thought that मैं तो नहीं जा रही हूँ हांगकांग और अब मेरी फैमिली मेरे बिना घूम के आ जाएगी, या मैं वापस घर जा रही हूँ, मैं छुट्टी कैंसिल कर रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ।